Good morning, dear students. Dear students, in this chapter, we have discussed about all the systems that were associated with earthworm, and we had started discussing about the cockroach. We have discussed the morphology of cockroach, in which we said that cockroaches are divided into head, thorax and abdomen. That is, body consists of three parts. Head part, which has the presence of the compound eyes. There is presence of the mouth with the mouth parts, and there is presence of the antenna. The thorax contains the walking legs, as well as there was presence of the forewings and the hindwings, which were opaque and leathery called tegmina, which were the forewings, and the hindwings were nearly transparent and helps in flight. The abdomen of the cockroach consists of different male or female reproductive system depending upon in which it is present, right? So there will be different structures that will be associated in the abdomen, which consists of the female genital pouch or the male genital pouch. Lastly, we said that anal styles is a characteristic of male cockroaches, whereas anal cerci, which was a sensory structure present in both male as well as female cockroaches. Now we are moving on to the anatomy of the cockroach. So internally, in the body cavity of the cockroach, there will be presence of different types of systems. So first we are going to discuss about the alimentary canal of the cockroach. So we are discussing about the digestive tract of the cockroach, that how it is present and how does it function. So here in the diagram you can see that we have drawn the cockroach body, and this is the whole alimentary canal which is actually going to be fixed within, but just for the easy diagram we have taken it out to study over here. Okay. So alimentary canal of the cockroach is divided into three parts, which are known as the foregut, midgut and the hindgut. So alimentary canal, it consists of foregut, midgut and hindgut. मतलब कॉकरोच की जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उनको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं. पहले पार्ट को हम कहते हैं फोरगट, फिर मिडगट और लास्ट पार्ट को कहा जाता है हिंडगट. तो फोरगट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रीजन, दैट इज द माउथ. सो फोरगट बिगिंस विथ द माउथ. मतलब सबसे पहला आ जाता है माउथ. अब हमें पता है दैट माउथ ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ माउथ पार्ट्स, और ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनमें लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल और मैक्सिले और साथ साथ में हाइपोफेरिंग्स होते हैं. तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं दे आर हेल्पफुल फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग. तो इनके जो टीथ होते हैं वो बाइटिंग, च्यूइंग, कटिंग टाइप के टीथ होते हैं. मतलब टीथ तो नहीं कह सकते, पर माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो बाइटिंग टाइप के होते हैं, विच हेल्प्स इन बाइटिंग ऑफ एनी ऑफ द फूड सब्सटेंस दे टेक. सो फोरगट जो है वो स्टार्ट हो जाता है विद द माउथ. Now mouth leads to the next narrow structure which is known as pharynx. So mouth continues with a small tubular passage, and this passage is known as pharynx. So there will be presence of the pharynx, क्योंकि माउथ जो है वो तो हेड में ही लोकेटेड है. ठीक है, तो उसके बाद ही कंटिन्यू हो जाता है अ वेरी नैरो रीजन दैट इज लोकेटेड ओवर हियर, एंड इट इज नोन एज द pharynx. Now this pharynx is further going to continue into still a narrow tubular passage, and that is known as esophagus. So pharynx continues as a narrow tubular passage, and this narrow tubular passage is now known as esophagus. तो पहले हेड रीजन में होता है माउथ, माउथ के बाद आ जाता है छोटा सा ट्यूबुलर रीजन जिसे कहते हैं फेरिंग्स.
फेरिंग्स के बाद यही ट्यूबुलर पैसेज कंटिन्यू होता है और इसे कहते हैं इसोफेगस। ओके, अब ये जो इसोफेगस है दैट इज गोइंग टू ओपन इनटू अ बिग साइज सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस लार्ज sac like structure observed is known as the crop. It is called as crop. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो pharynx, उसके बाद आप देखोगे somewhat elongated structure जिसे कहेंगे esophagus, and then after this bag like structure observed is called as the crop. So it opens into a sac-like structure which is called crop. And what is crop for? It is for the storage of the food. तो जो भी food उसने खाया है that will be stored for some time in which part? In the region of the crop. The food will be stored. अब ये जो crop है उसमें तो food store होता है, पर crop के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है इस रीजन को कहा जाता है गिजार्ड। दिस इज नोन एज गिजार्ड। और गिजार्ड तक हम क्या कहते हैं, यहां तक कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम कहते हैं फोरगट। सो रीजन ऑफ माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो गिजार्ड तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो किस में इंक्लूड होती है? इट गेट्स इंक्लूडेड इन द फोरगट। नाउ दिस गिजार्ड, द क्रॉप opens into the gizzard. Gizzard जो है it is also known as proventriculus. The gizzard is also known as proventriculus. अब ये जो gizzard है it has presence of outer thick circular muscles and inner thick chitinous teeth which helps in grinding of the food. किसमें हेल्प करता है? फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है गिजार्ड। वापस समझिए, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद छोटा सा रीजन आ जाता है वो है इसोफेगस, उसके बाद फूड जिसमें स्टोर होता है वो है क्रॉप। तो क्रॉप में फूड स्टोर होने पर थोड़ा थोड़ा फूड जो है दैट इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द गिजार्ड। अब ये जो गिजार्ड है दैट इज हैविंग आउटसाइड प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर मसल्स। बाहर की तरफ कैसे मसल्स होते हैं? सर्कुलर मसल्स होते हैं, और अंदर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 6 काइटिनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे एकदम टीथ की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर की तरफ, और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हेल्प इन ग्राइंडिंग, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम गिजार्ड का होता है, बिकॉज इट हैज प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस टीथ विद इन इट, so that helps in breaking down the food. So whole region from mouth to gizzard is included in the foregut, and the whole foregut is being that is totally enclosed by the cuticle. Okay, so foregut is completely lined by the cuticle. Now after gizzard there comes the region of the midgut. At the junction of foregut and midgut you can see this orange colored small tube like structures. Okay, so these are known as the gastric caecae or the hepatic caecae. These are known as gastric or hepatic caecae. So where are they present? At the junction of foregut and midgut. So at junction of foregut and midgut
hepatic CK are present, and these hepatic CK are about 6 to 8 blind tubule like structures. इन्हें ब्लाइंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके एंड्स जो है वो पीछे से बंद है, ठीक है, दे आर नॉट ओपन, इंस्टेड दे आर क्लोज्ड एट द एंड, सो दे आर कॉल्ड ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स. तो फोरगट और मिडगट का ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अबाउट 6 to 8 हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके. और हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके जो है उसका फंक्शन रहता है टू रिलीज डाइजेस्टिव juices. The function of it is to release the digestive juices. फिर यहाँ पे जो मिडगट है that gets completed, मतलब यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर पैसेज है that will be the midgut. अब मिडगट और हिंडगट इनके भी जंक्शन में, मतलब ये पूरा ही जो हो गया वो क्या है? मिडगट है, ठीक है. अब जो जंक्शन है मिडगट और हिंडगट का जंक्शन, ओके, इस जंक्शन पे अगेन देयर इज येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर ऑब्जर्व. सो एट जंक्शन ऑफ मिडगट and hindgut 150 thread like Malpighian tubules are present. Malpighian tubules are present. क्या present है? At the junction of midgut and hindgut 150 thread like yellowish Malpighian tubules are present. And these Malpighian tubules और इनका जो फंक्शन रहता है Malpighian tubules का, वो फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन. इट्स फंक्शन इज फॉर द एक्सक्रीशन. ये Malpighian tubules क्या करते हैं कि सराउंडिंग जो हिमोलिम्फ है उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर लेते हैं. सो हिमोलिम्फ या तो हम कह सकते हैं सिलमिक जो फ्लूइड है उसमें जो कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एब्सॉर्ब करने का काम किसका है? Malpighian tubules का. और एब्सॉर्ब करके वो सारा ही वेस्ट ये डिपॉजिट किस में कर देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में. अब लास्ट जो रीजन आ जाता है वो है हिंडगट रीजन. तो हिंडगट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू इलियम, colon and rectum, and rectum opens as anus, right? तो यहाँ पे जो नैरो पोर्शन है वो है इलियम, ये लॉन्गर रीजन है ये है कोलॉन, और ये जो लास्ट पार्ट है इसे कहते हैं रेक्टम. और रेक्टम विल बी टर्मिनेटिंग एज द एनस, एंड थ्रू द एनस दे विल बी रिमूविंग देयर वेस्ट आउट. Moreover, the structure that is observed at the top is the salivary glands. Salivary glands और salivary secretion जो है it is stored in a reservoir. Reservoir मतलब जो salivary juice को store करे, ठीक है. तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच में कितनी चीजें याद रखनी है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट. फोरगट जो है उसमें आता है माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉक और गिजार्ड. गिजार्ड जो है उसे प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है, वो फूड को ग्राइंड करता है, ब्रेक करता है. फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे ये जो 6 to 8 ब्लैंक ट्यूब्यूल्स हैं इन्हें हेपेटिक सीके कहा जाता है. और फिर आ जाता है पूरा कॉइल्ड पार्ट ऑफ द मिडगट. मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 150 येलोइश thread-like structures which are known as Malpighian tubules. और ये जो Malpighian tubules हैं ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं और वेस्ट को अब्सॉर्ब करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल के रिमूव कर देते हैं. Another thing that hindgut consists of 3 parts: narrow region ileum, a tubular portion colon, and the last portion which is called rectum. So that is included in the whole digestive system. Next we will talk about the blood circulatory system of the cockroach.
So after discussing about the digestive system of the cockroach, let us now discuss about one more such important system present in the cockroach, that is the circulatory system of cockroach. Now the circulatory system of cockroach is quite different from that of the one present in the earthworm. Because earthworm belongs to Annelida and it has a closed circulatory system. Whereas cockroach, it belongs to Arthropoda and they have an open circulatory system. So there is presence of open circulatory system. Now open circulatory system itself means that there will be presence of blood which is located in the hemolymph, that is in the cavity. The blood will be present in the body cavities or in the sinuses. So blood vessels are poorly developed. Blood vessels are poorly डेवलप, मतलब इतने ज्यादा डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं होते. और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ओपन कहाँ पे होते हैं? इनटू द बॉडी कैविटीज एंड दे ओपन अप इन द बॉडी कैविटीज. द ब्लड वेसल्स will be opening up in the body cavities and these body cavities are known as hemocoel. The body cavities are known as hemocoel. तो cockroaches are having an open circulatory system. इनमें blood vessels इतनी properly developed नहीं होती और ये जो blood vessels हैं वो body की spaces या body में जो cavities हैं organs के बीच में वहीं पे located होती है and they open up into these cavities which are known as hemocoel. Cavities are known as hemocoel. The organs are present or organs are located in hemocoel and bathed by hemolymph. मतलब organs जो हैं वो लोकेटेड किस में है? हिमोसिल में लोकेटेड है एंड दे आर बाथ्ड बाय, मतलब उनके सराउंडिंग जो फ्लूइड रहता है वो होता है हिमोलिम्फ. ठीक है, तो यहाँ पे हिमोलिम्फ जो है वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो ब्लड है वो रेड नहीं होता कलर में. तो यहाँ पे हिमोसिल मतलब कैविटी और हिमोलिम्फ मतलब उनका जो बॉडी फ्लूइड है. राइट, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, अर्थवर्म में भी ब्लड है, राइट, वैसे इनके पास जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहा जाता है हिमोलिम्फ. और ये जो हिमोलिम्फ जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स. हीमोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स. तो इनके पास प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं जो होते हैं ब्लड सेल्स. तो इनके बॉडी में जो सारे ही ऑर्गन्स हैं वो भी इस कैविटी में ही प्रेजेंट है और कैविटी को हिमोसिल कहा जाता है. और इनका जो कैविटी के बाहर मतलब कैविटी में जो फ्लूइड है ये फ्लूइड कोई ब्लड वेसल में तो है नहीं, तो ये फ्लूइड को कहा जाता है हिमोलिम्फ. और हिमोलिम्फ में होते हैं प्लाज्मा और हिमोसाइट्स. हिमोसाइट्स मतलब अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनकी बात की है. ब्लड जो है वो रेड नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन इनके पास होता नहीं है. इंस्टेड ये एक व्हाइटिश कलर का पिगमेंटेड सब्सटेंस इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है जो होता है हिमोलिम्फ. Now, if we talk about the circulatory system, particularly about the hearts, so there are 13 units of heart. The heart, there are 13 units of heart which are actually muscular tube-like structures. इनका जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ट्यूब की तरह दिखता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पूरा एक्सटेंड होता है एक्सटेंड्स मिड डॉर्सली इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो एक्चुअली
इनका जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड पे बीच में लोकेटेड है, और एक हार्ट नहीं होता। कितने हार्ट यूनिट्स हैं? 13 यूनिट्स होते हैं हार्ट के, और ये पूरा ही अगर देखें कंटिन्यूअसली तो ट्यूब की तरह दिखता है, एक मस्कुलर ट्यूब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा अपीयर होता है, like this. 13 units of heart will be located like this. अब ये जो हार्ट यूनिट्स हैं इनमें ब्लड जो है वो यहां से एंटर होता है, तो ओपनिंग्स को कहा जाता है ऑस्टिया। जहां से ब्लड एंटर होता है दैट ओपनिंग्स आर नोन एज ऑस्टिया। तो यहाँ पे ब्लड किस में से आएगा? तो ये जो सराउंडिंग जो साइनसेस, मतलब ये जो कैविटी है, तो रेस्ट ऑफ द कैविटीज में से ब्लड जो है इट विल बी एंटरिंग इनटू द sinuses, and from the sinuses the blood will be entering into the heart, and the heart is a tubular structure. पूरा ही ऐसे 13 यूनिट्स होंगे जो थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल साइड पे, ठीक है। एंड द ब्लड, और यू कैन से hemolymph enters through openings called ऑस्टिया। कहां से एंटर होते हैं? ओपनिंग से एंटर होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। एंड देन आफ्टर द हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट पंप्स इट, एंड विच फर्दर एंटर्स इनटू साइनसेस। मतलब साइनसेस में से ये ब्लड एंटर हुआ ऑस्टिया थ्रू हार्ट में, हार्ट ने पंप किया, आगे बढ़ता गया, और लास्टली द ब्लड दैट इज hemolymph enters again back into the sinuses. वापस साइनसेस में से it will enter into the heart. In such a way, the blood is going to flow anteriorly, and then after it is left in the cavities which are called the sinuses. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है इनकी, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, ब्लड वेसल्स इनकी बहुत ही लेस डेवलप्ड होती है, और ब्लड वेसल्स जो है वो कैविटी में ओपन होती है। तो यहाँ पे ये जो कैविटी है ये पूरी कैविटी होगी हिमोसिल। यही हिमोसिल में बाकी के ऑर्गन्स भी लोकेटेड होते हैं, और हिमोसिल के अंदर रहने वाला फ्लूइड होता है हिमोलिम्फ। हिमोलिम्फ कब किससे बना हुआ होता है? तो प्लाज्मा होता है और हिमोसाइट्स होते हैं। 13 यूनिट्स हार्ट के होते हैं जो एकदम मस्कुलर ट्यूब की तरह दिखते हैं, और ये ट्यूब्यूल पूरे ही मिड डॉर्सली थोरैक्स और एब्डोमेन सेगमेंट्स में लोकेटेड होती है। मतलब टोटल 13 ऐसे यूनिट्स होंगे। हर एक जो यूनिट है वो एंटीरियरली थोड़ा नैरो होता है और पोस्टीरियरली थोड़ा ब्रॉड होता है, और यहाँ पे ओपनिंग होता है जिससे साइनसेस में से ब्लड अंदर एंटर हो सके। एक बार ब्लड एंटर हो जाने पर वापस जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड विल बी मूविंग बैक इनटू द साइनसेस ओनली। सो सच टाइप ऑफ लेस डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द cockroaches. Next we will talk about the respiratory and the excretory systems of cockroach.